This is Akashvani. On the occasion of International Women's Day, now we bring you a special program. The participants are Professor Annapurni Subramaniam, Director, Indian Institute of Astrophysics, Padma Shri awardee Kathak dancer duo, Kamalini Asthana and Nalini Asthana, and Anamika Joshi, poet. Moderator is Gaura Dhawanlal. ये आकाशवाणी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। इसमें भाग ले रही हैं भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, पद्मश्री नृत्यांगना कमलिनी अस्थाना व नलिनी अस्थाना और कवित्री अनामिका जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं गौरा धवनलाल। चंड है, प्रचंड है, वो ज्वाला अखंड है, वो भाव है, विचार है, वो मौन का संवाद है, वो गीत का आकार है, वो दुर्गा साकार है। तुझे नमन, तुझे नमन, तुझे नमन। Hello and welcome to our very special program on Women's Day. We are very delighted to have with us in the studio some very, very special women, some lovely ladies. We are delighted to have with us Professor Annapurni Subramaniam. She is the director of the Indian Institute of Astrophysics, and she's a star who writes about heavenly bodies and other stars, among many other things. Also, please join me in welcoming the lovely duo, beautiful dancers, lovely dance performances, and their lovely presence in the studio today, Miss Kamalini Asthana and Miss Nalini Asthana. Both of them are Padma awardees and Kathak dancers of international repute, true cultural ambassadors. And Ms. Anamika Joshi, well-known poet and artist who lives what she writes and also portrays it. Ladies, welcome to the program. Namaskar. Thank you. Namaskar. We'd like to begin with you, Professor Annapurni Subramanian. You know, you are in what is traditionally been perceived as a male domain. Of course, women empowerment, women reaching for the moon, women reaching for the stars is something which is aspirational. All young girls are born with stars in their eyes, and actually, you've not only done that, you've made a huge contribution to astrophysics in the country. So we'd like to understand from you, this journey, was it difficult? Did you have to break stereotypes? But as a woman, how empowering has this been for you? I really like what I'm doing, so I would thrive whatever it takes to do what I want to do, and I'm happy about it. So my journey started in a hometown in Kerala, Palakkad. And my parents are musicians, so there is nobody doing science at home, and only music at home, all the time music. And I'm also trained Carnatic violinist. So science is something which I liked from the very beginning. And I also used to try to ask questions, why is it the way it is? And also used to be mesmerized by the stars and the sky we used to have in that time. And thanks to the power cuts, we used to have total dark sky, and I used to really enjoy watching it. And that is where it started. Of course, I had to convince my parents that this is what I want to do, and I want to spend time in the observatory when I started doing my PhD, staying away from family, and also convince my family that I like to spend time on what I like to do, and going to the observatory and taking data and doing science. There are struggles and there are hurdles, but then all the solutions for me worked around my theme of me doing that passionate work. So solutions will be there, but then this quitting what I'm doing is not on the table. And what I want to do will be the centerpiece, and the solution has to work around it. So that is what I've been doing. And still I've been managing with home and work and multiple hats. So that is the point that has been taking me through my journey. And I'm able to do multiple things because I am able to do what I'm passionate about. So that gives me energy, and that gives me all the time I have in whatever I can put in my work, and that has really helped me as well. And of course, I talk about my passion to everybody, including my family, so they understand that what keeps me happy is this. So I must do it. Right. So that's how it has been, and I'm really happy with it. Lovely. So, Professor Annapurni, what we're hearing you say is, and I think you used the word quitting, women, you're right, don't quit. Women, the more adversity we face, I think the more energy we get to actually move on. And
we have doughty women, we have strong women in the studio. Would like to, move to beautiful dancing duo. And Kamilini जी and Nalini जी, आप एक बात बताइए. अभी प्रोफेसर अन्नपूर्णी ने कहा कि मुझे पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा. आप एक ऐसी फील्ड में हैं और आपने कितनी जनरेशंस देखी हैं जी. तो ये जब आप लोगों ने सोचा, और वो भी दोनों बहनों ने जी, कि वी वांट टू कम इनटू दिस फील्ड एंड नॉट ओनली बी इट क्रिएटिव बट आल्सो प्रोफेशनल, तो किस किस को कन्विंस करना पड़ा? एक तो मैं ईश्वर की कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने एक जीवन में अच्छा हमसफर दिया बहन के रूप में, और एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक विचार से हम लोग अग्रसर हुए. मेरे फादर फौजी थे, एयरफोर्स ऑफिसर थे, और मदर संस्कार पर साहित्यकार और बहुत अच्छा गाती थी. 2 भाई और 2 बहन थे. उन्होंने सोचा कि पापा ने कि इनको फौजी रंग में रंगना है, लेकिन देशभक्ति का जो एक था वो हमारे आवरण हमारे शुरू से आता था, क्योंकि वो अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइट किए थे, तो उसके सारे एक्सपीरियंसेस बताते थे. तो उसमें बड़ी एक अच्छी चीज होती थी कि हमको देश के प्रति लगाव हुआ, और जो सभ्यता और संस्कृति है वो भी देश को ही समर्पित है. हम देश के एक प्रमुख अंश हैं और उसी से हम पहचाने जाते हैं. चूंकि माँ साहित्यकार थी और संगीतकार भी थी, तो सुबह हमारी स्वरों से होती थी. तब ऐसे अलार्म नहीं लगाते थे. जब वो गाती थी चौपाइयाँ या कुछ सुप्रभात, तो हम लोग जग जाते थे. और कलाकार में एक बहुत अच्छी चीज है कि स्वर प्रधान होता है. तो हमारे जीवन में बोलना, चालना, सुर, लय, ताल इतना बन गया था कि वो अनुशासनात्मक, जो मुझे लगता है कि हर पुरुष को फौजी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, वो भी बड़ी अनुशासन में होते. तो दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा रहा. हालांकि विधा दोनों फर्क थी. तो कहाँ जिसे कहते हैं कि आप बाहरी जीवन को जीना वो एक फौजी, और आंतरिक आत्मा को जीना साहित्य और संगीत है. बिल्कुल. तो हम दोनों साइंस स्टूडेंट थे और आर्ट्स को साइंस के नजरिए से कम समझते थे. भाई साइंस का मतलब तो हमें साइंस, और अच्छे थे पढ़ाई में. लेकिन बचपन से ही मैं बेस्ट एथलीट रही. 12 साल में जोनल चैंपियन रही और 6 साल नेशनल में. और जब ट्रैक में खड़ी होती थी तो मुझे लगता था सारे प्राइज मेरे पास आने चाहिए, और आते थे. राइट. मैं फर्स्ट होती थी तो ये सेकंड होती थी. ये डिबेट पढ़ाई में सब में फर्स्ट होती थी तो मैं सेकंड. हम लोगों का तालमेल चल रहा था. लेकिन भाग्यवश गुरु जी का हमारे जीवन में आना हुआ, संस्कारवश. और उनके आते ही मेरे भागते पाँव को जो सुरलय ताल में बांधा, तो जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी वो हमको मिली. और मैं कहूँगी ये हम संस्कारवश ही दोनों जने बंधे हैं. जो मैं करती हूँ वो ये आधा रह जाता तो ये पूरा करती हैं, जो ये करती हैं वो पूरा हो जाता है. मम्मी के नज़र में था कि हम कलाकार बने, लेकिन वो मन में सुप्त था, क्योंकि वो अच्छी होते हुए भी हमारे फैमिली में किसी ने प्रोफेशनली नहीं गाया था. और आपको पता ही उत्तर प्रदेश के होते हुए मध्ययुग में तो हमारे यहाँ पे अच्छे लोग सुनना भी नहीं करते थे. हाँ, बीच में एक बार ये भी कहा गया था, आपकी इतनी जिम्मेदारी, इतने बड़े घर के, ताऊ जी ने बोला आप नृत्य करोगे. क्योंकि पापा अपने मानसिक रूप से सबसे एडवांस थे, तो वो इन सब चीज़ों को बात नहीं करते थे. हमें एक खुला आकाश दिया था उन्हें उड़ने के लिए. कभी हमें किसी चीज़ के लिए टोका नहीं गया. हम पापा के बेटियां नहीं थे, हम उनके विश्वास थे. हम अपने गुरु के शिष्य नहीं थे, हम उनके विश्वास थे. हम देश के नागरिक नहीं, हम देश का विश्वास है. और इसी हौसले ने, इसी विश्वास ने हमें कभी रोका नहीं. और हम 2 एक साथ होते थे ना, तो डबल एनर्जी होती थी. अभी भी होता है. अगर मैं थोड़ी सी ढीली पड़ जाऊं तो ये मेरे साथ होती हैं, ये थोड़ी ढीली पड़ जाए, तो हम लोग मॉरली भी, हमें कभी किसी ने टोका नहीं. और ये सबसे बड़ा समाज का, परिवार का, सबका सहयोग रहा. और हमारे परिवार में लड़कियों को पूरी इज्जत दी जाती थी. हमारे यहाँ पे दोनों भाई बहन सब लोग इक्वल काम करते थे, तो हमारे रोक टोक कुछ नहीं हुई. हाँ, रोक टोक एक बात होती थी कि ये काम करना है तो करना है, मजाक के लिए नहीं करना. राइट. तो वो जो सीरियसनेस, वो जो डिसिप्लिन थी. अब आपकी बड़ी बहन, उनकी तरफ आते हैं. तो आप 1 साल की थी जब आप एकदम बड़ी हो गई, क्योंकि छोटी बहन आ गई. और दोनों में ये तालमेल रहा, दोनों ने डिसाइड किया इसी प्रोफेशन में जाएंगे. इसकी इंस्पिरेशन कौन थी आप दोनों में से थे कि ये ऑर्गेनिकली हुआ? जैसे नलिनी जी ने बताया ना, सब कुछ संस्कारवश होता है. नियति हमको हमारा भाग्य और विचार सब बदल देती है, फिर वही अभिव्यक्ति का रूप ले लेती है. सॉल्व डेस्टिनी जो भी होना था. और जैसे इन्होंने बताया, माई मैटनी आइडल वॉज मैडम क्यूरी. आई वॉन्टेड टू बिकम ए साइंटिस्ट. शी वॉज इन टू इंजीनियरिंग. बट जब हम गुरु जितेंद्र महाराज जी के सानिध्य में आए जी, तो वो ऐसा लगा जैसे कि एक ही हमेशा एग्जाम्पल देती हैं, जैसे आप आयरन फिलिंग्स रखें और मैग्नेट रखें. अगर वो एक दूसरे से अट्रैक्ट ना हो, या तो आयरन फिलिंग्स ठीक नहीं, सही नहीं है, या वो मैग्नेट सही नहीं है, तो दोनों चुंबकीय आकर्षण में हम लोग ऐसे बंध गए कि हमें पता नहीं चला कि हमें क्या करना है और कहाँ तक जाना है.
बस कला और उनके अंदर की सौंदर्य वो हमें आकर्षित करता चला गया। उनके बोलने का ढंग बड़ा एब्स्ट्रैक्ट हुआ करता था, उसको हमें समझना पड़ता था, बड़ा अजीब से वो बोलते थे, बट उनकी हर चीज को हम समझते गए, वो बस एक आकर्षण होता चला गया। आध्यात्मिक था बहुत, वो बड़ा आध्यात्मिक होता था जो हमने पहले कभी नहीं सुना था। बस हम लोग ये सोचते थे ये पुरुष होते हुए इनके अंदर नवरस है, हम स्त्री होते हुए हमारे अंदर कोई भी रस नहीं है, वी आर सो ब्लैंक, आईज आर सो ब्लैंक, आवर बॉडी सो रिजिड। तो हमने उनके अंदर का ग्रेस, उनके अंदर की नवरस, उनके अंदर की नायक नायिका का जो भेद हमें नजर आया, हमने कहा ये सब हमें आना चाहिए, और हम लोग उनकी तरफ आकर्षित होते चले गए और हम सीखते चले गए। राइट, आपने बहुत सुंदर बात कही कि हम वुमेन्स डे तो खैर सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, बट कहीं जो ये फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं, करेक्ट, ये जेंडर को भी क्रॉस करते हैं, और हम बोलते हैं कि टू बी फेमिनिन खाली वुमेन का, इट्स सच अ ब्यूटीफुल एंड एम्पावरिंग एनर्जी। और बहुत सुंदरता से कहा कि गुरुजी की तरफ जो आपका आकर्षण था, दीज वर द एनर्जीज एंड दीज वर द पुल्स। एक बड़ी अच्छी बात है कला में जो मैंने देखा है, एक तो पहले मैं जिसको छोटा समझती थी साइंस में, एक तो इसमें आत्मा है, अध्यात्म है, दूसरी ये आपसे आपका साक्षात्कार कराती है। ये बाहरी चीज अंदर नहीं आती, अंदर की चीज बाहर होती है। गुरु आप उसको जागृत करके आपसे साक्षात्कार, दिस इज यू कैन सी योर इमेज, टू नो योरसेल्फ। दूसरी बात यह है, आप जितनी देर अभ्यास में रहते हैं, साधना है, मतलब आपके दिमाग में कुछ और नहीं, आप सत्य के साथ रहते हैं, मेरा सुर सच्चा लगे, मैं ताल में हूँ, मैं अच्छी लगूं, दूसरे मेरे को अच्छा देखें, तो और किसी साधना में आप इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं होते जितनी जल्दी आते। छोटा बच्चा भी होगा तो कनेक्ट रहेगा। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि आप जितनी देर उसमें रहते हैं, सत्य के साथ तो रहते हैं, अपने साथ भी रहते हैं, और जितनी भी क्लाइमैक्स में चले जाएं, क्रिएटिविटी, नो डिस्ट्रैक्शन। जी बिल्कुल। आपने इससे पहले अभिव्यक्ति की बात की, एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन अनामिका जी। अनामिका, आप लिखती हैं, इतनी सुंदर अभिव्यक्ति है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है माँ, जिसको हम कहेंगे थोड़ी देर में, नरेट करिएगा, आप बोलिएगा। तो ये जो आपकी जर्नी शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो बतौर कवि जो जर्नी थी ना, ये मुझे लगता है कि लिखा हुआ तो बहुत पहले था शायद, पर वहाँ पर जाने का जो एक वो माहौल बनता है वो बहुत बाद में बना मेरी ज़िंदगी में। शुरुआत कॉपीराइटर के तौर पर हुई। बचपन में पापा की कविताएं सुनाती थी स्कूल में, बड़ा मज़ा आता था। और ख़ास बात ये होती थी कि पापा ताल में सिखाते थे, है ना, कि कविता ऐसे ही नहीं, स्केल, हाँ स्केल में, कि रिदम होना चाहिए, कैसे छंद में, बिल्कुल पापा की कविताएं होती थी। लेकिन उससे भी खूबसूरत बात ये होती थी कि पापा कविता से ज़्यादा कवि को इम्पोर्टेंस देते थे, कि अगर ये कविता सुनाने जा रही हो तो पहले एक पन्ना कवि के बारे में बताओ लोगों को। और वो मुझे लगता है कि मुझे बहुत आकर्षक अभी भी लगता है कि आप कवि का ही एक रूप है ना, कि जो कवि की एक जर्नी रही है। तो जब आप कवि के बारे में जानते हो तो कविता का कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो हम जैसे किसी कवि के बारे में बात करते थे तो कि ये किस तरीके की कविता लिखते हैं, ये किसके लिए जाने जाते हैं, इनकी प्रसिद्ध कविताएं कौन सी है, ये कहाँ बिलोंग करते हैं, किस भाषा में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, छंद में लिखते हैं कि मुक्तक में लिखते हैं, मतलब इसके बाद हम कविता पर आते थे। तो मुझे लगता है इंटरेस्ट वहाँ जागा। फिर अपने ज़िंदगी में कॉपीराइटर बनी और शब्दों के साथ खेला बहुत सालों तक, 10 साल तक। फिर ऐसा एक मौका आया कि कुछ एक इवेंट हो रहा था मदर्स डे का, तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुम एक काम करो, वैसे तो मदर्स परफॉर्म करेंगे उस इवेंट में, तुम मदर्स को डेडिकेट करते हुए कुछ सुना। तो मुझे लगा कि ये तो पता नहीं क्यों बोल रहा है मुझे, कि मैं तब कविताएं इतना रेगुलरली लिखती भी नहीं थी। और वो मुझे लगता है उसको भी शायद सरस्वती ने बोला कि इसको जरा थोड़ा धक्का दो। वो बोलते हैं ना, इंसान को भेजा जाता है आपकी ज़िंदगी में कोई जर्नी शुरू करवाने के लिए। तो मैं भागती रही, नहीं लिखा मैंने। फिर इवेंट के एक दिन पहले जब दोबारा बोला गया कि यार कुछ तो लिख, कुछ तो लिख, तो मेरी मम्मी आसपास घूम रही थी। और मेरी मम्मी ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारे बिजनेस घर से करने की कोशिश की है। हमने मम्मी के ऊपर बहुत रोक टोक लगाई है, उल्टा नहीं था, हम लगाते थे उल्टा, मम्मी ऐसा पहना करो, ऐसे किया करो। तो मुझे लगा कि जब मम्मी घूम रही थी मेरे आसपास, तो जो कविता निकल के आई वो थी, माँ तुम भी गलत हो सकती हो। और कमाल की बात यह है कि जिस शाम मुझे कविता सुनानी थी, हाथ कांप रहे थे, होठ चिपक रहे थे, जो पहली कविता सुनाते टाइम, पन्ने फड़फड़ा रहे हैं स्टेज के सामने। लेकिन उससे भी पहले इतनी देर हो गई थी पूरे इवेंट में कि मौका नहीं आना था मेरा। मैं खुश हो गई कि चलो बच गई जो है सुनाने से।
पर फिर वो लास्ट का एक परफॉर्मेंस में क्या होता है, पूरा एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून किया जा रहा था। तो मेरे दोस्त ने आके बोला कि जब तक ये ट्यून कर रहे हैं तब तक सुना दे। तो 3 मिनट का टाइम था, वो 3 मिनट के कारण आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि उस 3 मिनट में जो मैंने चिपकते होठों से कविता सुनाई, वो वाली, वो पन्ना जिसमें कविता लेकर चली गई थी, एक रोती हुई लड़की आई थी सुनाने के बाद में और पन्ना मेरे से ले गई थी। और मुझे उस दिन समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, पर आज जब मेरे पास अब भी मैसेजेस आते हैं या लोग जो है बताते हैं कि उनको कैसा लगता है कविता सुनकर, तो मुझे लगता है कि वो होना था, वो मैंने नहीं किया, वो होना था। अब मुझे 7 साल हो गए हैं उस यात्रा को शुरू किए। आपने इतनी सुंदर भूमिका बांधी है, उसका थोड़ा सा कुछ सेकंड का अंश सुनाइए, क्योंकि आई वांट टू गो बैक। मेरे पास जैसे आपने साइंस की बात की, प्रोफेसर अन्नपूर्णी के पास मैं वापस जाना चाहती हूँ, पर अगर थोड़ा सा कुछ सेकंड का अगर आप बता दें। तो माँ के बारे में हम यही बोलते हैं ना कि माँ पेडेस्टल पे बिठाते हम सब जो है, कि वो माँ है, वो माँ है तो गलत कैसे हो सकती है भला। परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, टिफिन में खाना एकदम स्वादिष्ट जाए, बच्चों के कपड़े वक्त पे धुल जाएं, एक भी दाग रह ना पाए, वो माँ है, वो गलत कैसे हो सकती है भला। नौकरी करनी चाहिए तो बच्चों ने रोक दिया, कुछ घर पर ही करना चाहा तो सबने टोक दिया। तुम माँ हो, तुम भला अपना वक्त बच्चों से कैसे छीन सकती हो। तुम माँ हो, तुम भला अपने लिए कैसे जी सकती हो। बचपन से हम बच्चों ने माँ पर कुछ ऐसा प्यार जताया कि माँ को हमेशा सही करने के लिए मजबूर ही पाया। माँ, दोस्तों के सामने नाक मत कटवाना। सुनो माँ, स्कूल में ना कुछ प्रॉपर पहन कर आना। माँ, आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत किया करो, आप रहने ही दो, घर पे रहा करो। जिन बच्चों की गलतियों को माँ 1000 बार माफ कर देती है, वो माँ खुद कभी गलत नहीं हो सकती है। खैर, हम बच्चों के साथ माँ भी बड़ी हुई, पर आज भी देखती हूँ उन्हें अपने आंखों के कोने से मुझे देखते हुए, जैसे पूछ रही हूँ, सही तो पहना है ना, यही बोलना है ना, ऐसे करूं कि वैसे करूं। जिस माँ से हमने सब कुछ सीखा, वो ताउम्र हम बच्चों से सीखने की कोशिश करती रही कि माँ होकर कहीं गलत ना हो जाऊं, जैसा बच्चा चाहे वैसा बनकर दिखाऊं। तो आज माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वादा करती हूँ कि आपके साथ खड़ी रहूंगी। आप सही करो या गलत, आपसे जुड़ी रहूंगी। हमसे ना कोई इजाजत ना मांगना, जो मन करे ना बस वो करते जाना। माँ, आप गलत हो सकती हो, आपको हम भगवान बनाकर नहीं रखेंगे, आप इंसान बनकर जियोगी। खुलकर गलतियां करना, खुलकर जीना, और जैसे आप खड़ी थी हमारे साथ, वैसे मैं आपके साथ खड़ी रहूं। बहुत ही सुंदर प्रोफेसर अन्नपूर्णी, and I know this is a poem which is touching all our hearts. We just spoke about, and Anamika said, मैं साथ खड़ी रहूंगी. I think somewhere to see women's empowerment in this country, we also have somebody who's playing that role of saying, I am with you. And those are many of the government initiatives that have happened. Initiatives that have supported women's empowerment in the past few years. A lot of stress has been put, a lot of programs have come out. Would you like to share with our audience how has this brought about movement and the participation of women into fields which actually earlier were not seen as their domain? Astrophysics and astronomy is a field where women are not there much. But I also wanted to add that when I joined the institute for my PhD, I did my PhD in Indian Institute of Astrophysics. And at that place, there were women astronomers and there were women observers. When I go to the observatory I was mentioning, I'd start my thesis and I got married. And when I go to my observatory and spend time, there were women at the telescope, the women doing the data analysis, etc. So there were people, except that what used to happen was that because of the multiple marathons we run all the time, right? Because we have to take care of the children, we have to take care of the family, ourselves, and then research. So it gets slowed down. So you can't really climb up the ladder of seniority and then, occupy leadership positions. Now, with the technology, things have changed, and also support and awareness. Mostly in the last 1 decade or so, the awareness and the government's initiative, as well as institutions, as well as, general people thinking that, whoever is capable to do, let them
be there, not discriminate with us because she's a woman. You can't assume that a woman cannot perform that or cannot deliver that or cannot lead a project or cannot lead an organization. So this subconscious bias, people always skeptical about giving empowerment to women candidates, that is reduced, and that has resulted in more women able to go up, climb up the ladder. And also, even in conferences, meetings, even in committees, we see women being present. When women are presenting to a committee, there are many cases where I go and present something to a committee and none of the committee members are women there, completely men. Manel, they are called. But now things are changing and you can see women on the other side, but a lot more work to do. And most of the thing is like we know that when a woman is starting a career, as very nicely put it in the poem, a woman has to be a daughter, a mother, and probably a grandmother at times, so and a wife. There are so many hats we have to wear and so many set of people we have to make them happy. And everybody expects you to be perfect, right? Nobody thinks you that you're also a human being and you can also make mistakes. You can't be expecting everything out of the person. That's not possible. So that things are a bit changing now and the society also is realizing that. And so we are able to get more women out. And also when women are building in their career, support system has to be provided in the family, in the organization. So we have freshers, we have people who can come and deliver the work, not asking exactly when you stepped in and when you walked out. So support system build-up is very important. And we know that women can do things differently from men because the mental capability we have, the strength we have, the resilience women have, very important to bring into the teams. And I can see that when women are in the committee, the kind of dynamics in the committee is very different. They're not aggressive. Right. They actually soften it down and looks at different ways. So we need to support it more. Things are changing. And with the support of the government and the initiatives, I think we can look forward and more women coming into it. It will not be just like one person as a stereotype and for people to look for. I think there will be more women coming up because we have a broader base now and this base will come up in a few years' time. And I think that it's looking bright. True. Very true. As bright as the stars you research. Absolutely. In fact, while celebrating Women's Day, the first citizen of the nation, President Draupadi Murmu has also reiterated the strength that women bring to anything that they do. In her address, she said some very, very powerful things. ये दिवस महिलाओं की उपलब्धियां का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। इस सम्मेलन का विषय नारी नेतृत्व से विकसित भारत अत्यंत प्रासंगिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा के 50 वर्ष पूरी हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कालखंड में नारी समुदाय ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मैं अपनी जीवन यात्रा को भी इसी प्रगति की कड़ी मानती हूँ। ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लेने से लेकर मेरे राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा भारत के समाज में नारी को मिले समानता के अवसर एवं सामाजिक न्याय की कहानी है। देश की नारी शक्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने और विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नेतृत्व प्रदान करे, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विभिन्न विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों से उन्हें जोड़ा जा रहा है। वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, इसके लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने रही है। सरकार के ये सभी प्रयास विभिन्न स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं और उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करे। Would like to, move to Nalini जी। कहते हैं ना डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं जब कोई women सो कॉल्ड मैन पैनल से कि women भी पैनल पे आती है और थोड़ी आई थिंक
नम्रता आ जाती है, थोड़ा इक्वेशन, बिकॉज एनर्जीज भी तो बैलेंस होती है। और एक अंग्रेजी में बोलते हैं बहुत सुंदरता से कि ओनली वेरी स्ट्रांग पर्सन कैन बी जेंटल। या सो आपको क्या लगता है कि आजकल भारी चीजें गहराई को छूती है? बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या डायनामिक्स ये जो है ये घरों में चेंज हो रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, ज्यादा लोग बात कर रहे हैं? क्योंकि चर्चा है, अखबारों में आप देखते हो कोई पॉलिसी आती है, थीम्स रिपब्लिक डे पे नारी शक्ति आ जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट आती है, इससे फर्क पड़ रहा है, लोग बात कर रहे हैं। और देखिए, समाज में हर चीज का एक समय आता है तो उथल पुथल तो होती ही है, विचारों से भी, भाव से भी और अभिव्यक्ति से भी। ये सबका आधार विचार होता है। हम सोचें कि हम सशक्त नहीं हैं, हमें उठना है, तो हमें लगता है नहीं है। अगर हम देखें कि हम सशक्त हैं तो हम ऊर्जा को आप क्या और सशक्त करेंगे? एनर्जी इज एनर्जी, इट कैन बी चैनलाइज्ड, बट यू कांट थिंक कि हमारे अंदर एनर्जी का लेवल कम है, तो आप ही को अपने अंदर जागृत करना है। और जब आप क्रियाशील होते हैं तभी कोई चीज जागृत होती है। आप किसी चीज को वैसे ही छोड़ देंगे, बैटरी को गाड़ी में छोड़ दो तो वो डाउन हो जाएगी, चलाते रहेंगे तो चार्ज होती है। एक नलिनी का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है एनर्जी चैनलाइज का। ये कहती हैं अगर आप तवे को रखें और उसमें दिन भर रोटियां बनाएं, कुछ नहीं होगा, और उसको बिना रोटी करे छोड़ दें तो आपको लगेगा कि वो तो जलने लगा, क्योंकि उसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हुई है। पर मैं जहां तक सोचती हूँ, इसमें हमारी सोच ज्यादा है, भाव ज्यादा है। अभिव्यक्ति के लिए आपको खुद ही सामने आना। जैसे हमने कभी भी ना अपने को छोटा समझा, ना अपने आप को बहुत बड़ा समझा। हमने सोचा ये कार्य ईश्वर ने हमें दिया है। जैसे एक पृथ्वी है, उसमें सोना है, हीरे हैं, जेम्स हैं। आप उसे क्रिएट नहीं करते, क्रिएट करेंगे तो आर्टिफिशियल है वो। हम उसे चिजल कर सकते हैं, है ना, हम उसको तराश सकते हैं, लेकिन हम उसे क्रिएट नहीं, वो नेचर की चीज है। तो जो आपको पात्रता ईश्वर देता है, आपको सोच के उसे अच्छे रूप में निभाना है, ये सोचना है। और हमारे शरीर से ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, 2 हाथ हैं बराबर हैं, 2 आंखें बराबर रोती हैं, 2 बराबर खुलती हैं, बराबर हंसती है, 2 पैर। तो ये लेवल साथ साथ चलता है। बहुत सी जगह मैंने देखा है सब लोग पुरुष से होड़ करते हैं। पुरुष भी बहुत एक अच्छी चीज है समाज में, और भारत के पुरुषों का तो कहना ही क्या। जहां आपको बोलना नहीं पड़ता वो आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लीव मी इन द वर्स्ट आई गेट द बेस्ट। और मुझे हर रूप में, मित्र के रूप में या किसी भी रूप में, मेरे गुरु ही स्वयं में, ऐसा मैंने गुरु भी नहीं देखा। मेरे पिता बड़े एग्जाम्पल के रूप में थे, माय ब्रदर्स ऑल्सो। पर एक बात थी, कलाकार हैं तो मैं और कमलिनी या मेरे गुरुजी एक विचार से करते थे काम। उस बराबरी के लिए मैंने कुछ पंक्ति लिखी है, मैं आपको सुनाती हूँ कविता की। और कविता ऐसे जागृत हुई, मेरा जैसे मैंने बताया साहित्य से कोई इंटरेस्ट है, मम्मी साहित्यकार थी, पर मैं बीमार पड़ी, टाइफाइड हो गया था, ये स्कूल चली गई तो मेरे को सामने किताबें रखी दिखाई दी। तो मेरे को ना खाली रहने की आदत नहीं, पहले तो मैंने अपना कमरा साफ किया, फिर मैंने वो किताब उठाई, वो जयशंकर प्रसाद की थी। उसमें तो शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छुपाए, जीवन की इस गोधूली में तुम कौतूहल से आए, माना वो उछलना थी पर उसमें मेरा विश्वास घना था, उस माया की छाया में मैं स्वयं सत्य बना था। मुझे अभी तक वो पंक्ति याद है। और एक खास बात है, नृत्य संगीत में आपको गूगल वगैरह नहीं देखना पड़ता, हमारी लाइब्रेरी दिमाग में होती है, उससे मेमोरी शार्प रहती है। तो हम अरुणाचल जा रहे थे, तो मैंने देखा आकाश और पृथ्वी, 2 रेनबो एक साथ पहली बार मैंने देखे। उसको देख के कुछ पंक्ति लिखी, आकाश को पुरुष तत्व माना है और धरती को नारी। प्रकृति की चीज है, हो नहीं सकता और छू नहीं सकता की खासियत है। आसमां कितना भी झुके जमी हो नहीं सकता, जमी कितना भी उठे आसमां छू नहीं सकती, मगर फिर भी साथ साथ चलते हैं, मोहब्बत की इससे अच्छी मिसाल हो नहीं सकती। इतनी भी धरती नहीं मिलेगी जहां आकाश ना हो, सरप्रस्ती है आपके ऊपर, और वो विनम्र है नारी। लेकिन क्षितिज महज एक धोखा है, मिलते हुए नजर आते, क्षितिज महज एक धोखा है, बिछुड़कर कभी किसी से कौन चैन से सोया है, और शबनम का हर कतरा इस बात की देता है गवाही, धरती ने रात अपना आंचल आंसुओं से भिगोया है, लगता है आसमां भी रात भर रोया है। 2 चीज प्रकृति की देन है, एक दूसरे के पूरक हैं। और नृत्य में सबसे अच्छी बात है, हम क्यों प्रसन्न रहते हैं, इसमें हम लिंग की भिन्नता नहीं रखते, हम आत्मा से नृत्य करते हैं, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। मैं अर्जुन बनूंगी तो मैं नलिनी नहीं हूँ, मैं अर्जुन का पात्रता करूंगी। एक पुरुष जब नारी का करेगा, आप कई बार गुरुओं को देखते हैं वो उसमें नहीं, लेकिन आप उसमें नारी खोजते हैं, उसकी अभिव्यक्ति को, अपने निराकार को आकार देके साकार करना ही कला है, वो करते हैं। तो हमारे उसमें लिंग भेद नहीं रहता है, हम उसको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से
कृष्ण लाए, कृष्ण बन गए, हजारों लोगों को हम कृष्ण नजर आने लगे। तो वो जो निराकार को साकार करने वाली आध्यात्मिक चीज है, जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए पुरुष स्त्री कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू अनामिका कि हमने अभी बोला कि पुरुष और स्त्री का जो अंतर है, एक डिवाइड जो माना हुआ है, एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर होल। और कभी कभी जब वुमेन पोएट्स होती है, वुमेन राइटर्स होती है, सबसे पहले सवाल होता है आर यू अ फेमिनिस्ट? तो ये फेमिनिज्म आपकी नज़र से, आप दिल से लिखती हैं, मन से लिखती हैं, क्रिएटिविटी से लिखती हैं, तो ये फेमिनिज्म क्या है आपकी नज़र? मैं ना इसका जवाब एक कविता से देना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको मैम सुन रही थी, बहुत सुंदर बातें करती हूँ एक तो मैम, सुनते रहने का मन करता है। जब एक प्यारी प्रतिभा हमारे लिए प्यार रखेगी तो हम जरूर प्यारे होंगे। हम भी ना कहीं बीच में उस घेरे में आ जाते हैं कि अगर ये मुझे मिल जाता ना तो मैं ये कर सकती थी, अगर ये होता ना तो मैं वो बन सकती थी। कि मैं निकल रही हूँ उन संवादों से जो शुरू होते हैं मैं बहुत कुछ कर सकती थी के साथ, अब मैं कर लेती हूँ। हाँ, चाहते हैं सब बनी रहूं घर के आसपास, करूं नौकरी जो दूर ना ले जाए और बनी रहे परिवार की आस। आसमान छूने से बस कुछ कोस दूर रह जाती हूँ, पर जब भी हिम्मत कर हाथ उठाती हूँ तो बादल को थोड़ा और करीब पाती हूँ। देखा है मैंने कि सब संभल जाता है उस पहले कदम के बाद, जरूरी होता है तो भरोसा करने वालों का साथ। हाँ, मेरे आयाम सिकुड़ जाते हैं उस पहली सीढ़ी पर ही जहाँ नकार दी जाती है हर वो जिम्मेदारी जिस पर लड़की होना पड़ जाता है अक्सर भारी। कैसे करोगी ट्रैवल, कैसे संभालोगी घर, क्या बना पाओगी अपना मुकाम उनके बीच जहाँ लड़की होना नहीं है कोई बात आम? क्या वो तुम्हारी बात सुनेंगे जो तुम्हारी मौजूदगी से कतराते हैं, जो तुमसे कोई काम समझने में अक्सर घबराते हैं कि ये उनका वर्चस्व हिला जाएगी, एक अदनी औरत हमें क्या समझाएगी? पर अगर मैं रह गई घर डालकर इल्जाम उन चंद लोगों पर, तो फिर आसमान सूना रह जाएगा, मेरे पंखों का रंग उसे भर नहीं पाएगा। इसलिए चाहे जो हो, घर से दूर की नौकरी, दूसरे शहर का काम, झिझक भरी राहें या ढलती हुई शाम, मैं तैयार हूँ बदलने को हर वो ठहरी हुई तस्वीर जिस पर अब तक छपी है किसी और की लिखी मेरी तकदीर। मुझे हर उस ना को हाँ में बदलना है जो कोई और तय करता है। तुम बस एक काम करना, कोई मौका दिखे मेरे लिए तो उसे मुझ तक जरूर पहुंचाना, मेरे हिस्से के बहाने खुद ढूंढ कर मत लाना। बहुत सारे काम जो मेरे लिए खास बना दिए गए हैं, मुझे उसे आम बनाना है। मुझे भी मेरा नाम बिना शोर किए सुकून से कमाना है। बहुत सुंदर। प्रोफेसर अन्नपूर्णी, you know, such inspirational words, and you've had an inspirational journey. And as Anamika was just saying, there's so many things and so many people who would ask us questions. Can you do this? Can you travel? Can you go here? Will you be able to do it alone? A message from you to young people listening, to young women, young girls tuned in, and even to mothers tuned in, because mothers have a huge influence on young lives, and especially young girls. How should they take all this? What is the encouragement required? And what should be the approach? A lot of questions bundled into one. Right. So if I look at my own journey, my mother and father were inspiration to me in the sense that my mother was a music professor in college. And my father used to be extremely brilliant. He used to do things. I learned things like fixing a fuse, how to connect two wires. He's a musician, you see. But he can do things like that, and he can actually do really creative things to solve problems at home or fixing something, etc. So there was a lot of inspiration from them. So what I've learned is that you have to keep learning, and there is a lot of inspiration around you. Everybody has some things which can actually, I can take and make it inspirational. So that inspiration I have to identify. I have to have the capacity to identify the inspiration and take it. And when I get inspired, I can actually radiate that inspiration to everybody around me. So when in the next journey is along with my parents and my in-laws and family, my job was to convey my passion, continue with my journey of exploring, doing astrophysics research, etc. So conveying that was another job, so I have to take it up. Now next with kids. What is the thing? You have to teach them. They also have to grow up along with you, and you have to grow up with them, right? And you have to empower them from the very beginning. You cannot be saying that, okay, I'm a mother, I'm expected to do everything for them. No.
You are a mother. You are there to empower them. You are there to guide them, not do everything for them. They also need to know how to do things by themselves. So leave them, let them also grow up. So I'm happy to say that my children they have their life skills. If they are living alone and they know the cooking, they actually can handle their own life, their clothes independently. They are individuals and also independent thinkers. So from very beginning, I have encouraged them to think and solve and give them options to choose so that they make the choice. At the same time, they know the repercussions of making the choice. So they are responsible for making the choice and not me. So I don't have that burden. The Right. choice is theirs. Right. So let them grow up with thinking skills. Right. I think what you're saying is they're your decisions because it's your life and you have to be accountable for them. So have a role in taking those decisions. And this is so important because when you give them empower a decision-making skill, it's like a tool for so many aspects of their life. So I think this is really beautiful. I want to now move the direction. Yes, absolutely. Kamalini ji. जी जी बहुत सारे यंग बच्चे आते होंगे आपके पास नृत्य सीख, पर्टिकुलरली गर्ल्स के बारे में, क्योंकि आजकल तो बॉयज भी डांस सीख रहे हैं, ब्यूटीफुल वो करते हैं. तो यंग गर्ल्स, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कहीं दिक्कतें जो हैं, हमारा माइंडसेट, देखिए माइंडसेट अगर सेट होने में 2-2 साल लगे हैं, 100 साल तो लगेंगे ना टूटने में. और कहीं सबलिमिनली कहीं एक माँ चाहे कितनी भी एडवांस हो, कोई ना कोई एक सेंटेंस या एक शब्द ऐसा निकल जाता है जो 3 कदम पीछे ले जाता है. तो वो गर्ल्स को आजकल जो आप चेंज देख रही हैं, उनकी मदद से मिलती हैं, तो आपको क्या लगता है कि यंग पीपल, यंग गर्ल्स, समय बदल रहा है और वो एम्पावरमेंट हो रही है? आपने बिल्कुल सही कहा कि कला सीखने के लिए सबसे पहले तो उन लोगों के घर में ये धारणा होती है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बिकॉज उनको उसके आगे के कुछ आयाम नजर नहीं आते. दे फील दैट यू आर पुटिंग योर लाइफ ऑन स्टेक. प्रोफेशन क्या होगा, मीन्स ब्लैंक फायर हो रही है. ऐसा हमारे समय भी था. वाइल डूइंग सो मेनी एकेडमिक्स एंड ऑल दैट, सोचा था ये IAS बनेगी या साइंटिस्ट बनेगी, ये बनेगी. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हमारा खुद का, जैसे अभी मैंने उनका सुन रही थी, इसी तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर चॉइस छोड़ी थी. व्हाट यू वांट टू डू. इफ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, आई वांट टू सी यू एट द हाईएस्ट. इफ यू वांट टू बी ए स्पोर्ट्स पर्सन, आई वांट टू सी यू एट द फ्रंट ट्रैक. सो हमें ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग सॉर्ट ऑफ समझ लीजिए. तो हमने सोच लिया हम जो भी करेंगे टॉप पे जाके करेंगे, लेकिन आर्टिस्ट बनेंगे ये तो कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि आर्टिस्ट का कुछ भी ऐसा होता नहीं है, और ना ही उसका कोई डेस्टिनेशन होता है, ना ही उसके इतने सारे आयाम. पहले गुरु तराशे, फिर आप अपने आप को तराशे. तो ये सारी बातें होती ना. तो जब हमने सीखना शुरू करा था तो ये सब हमारे सामने था नहीं. हम लोग सिर्फ एक अंधेरे रास्ते में चल पड़े थे जी. सिर्फ चाहत, लगाव और आकर्षण, मेहनत, हम दोनों ने एक दूसरे के अच्छे बॉन्डिंग के साथ हमने काम शुरू करा. लेकिन करते 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 हमें स्वयं राह दिखनी शुरू हो गई. हमने फिर इसके पूरे, बिकॉज ऑफ माई पैशन टुवर्ड्स मेडिकल साइड, हम लोगों ने इसमें गुरुजी के साथ मिलकर बहुत सारी रिसर्च करी. डांस इज नॉट मियर एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट जस्ट डांसिंग ताथी थी तत्. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डांस, what are the outcome of dancing, how you can relate with your society, how you can put yourself into placement side. ये सारे हम लोगों ने चीजों को एक फ्रेमवर्क दिया है. जैसे हम लोगों ने करा, नलिनी जी ने रिसर्च करी रिलेशन ऑफ डांस विद योग. अष्टांग योग का हम लोग कैसे नृत्य में उपयोग करते हैं टू कीप योर सेल्फ फिट. कहाँ पे तो संपूर्ण योग है, आध्यात्मिक भी और शारीरिक दोनों का सामंजस्य. तो इस तरीके के जो हमारे रिसर्च पैटर्न हमने बनाए, कैप्सूल्स बनाए सीखने के दौरान ही, उसको हम लोगों ने सीखने के दौरान ही हम लोगों ने उसका प्रदर्शन शुरू करिए इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशंस. वे बैक इन 1984 when we started our first journey on an international platform, we started doing all these things. तो हम लोगों के ये सब यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, किंग्स मेडिकल कॉलेज, लंदन स्कूल ऑफ, सो मेनी यूनिवर्सिटीज. तो हम लोगों का जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे वो होते थे इवोल्यूशन ऑफ डांस, रिलेशन ऑफ डांस विद योगा, थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ डांस. मीन्स इफ यू आर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू डांस, टू नो योर सेल्फ, रिलेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी. मतलब इतने सारी बातें हैं ना, तो लोगों को लगता है सिर्फ जेस्चर्स, पोस्चर्स, इट्स समथिंग बियॉन्ड इट. तो इट्स ए कंप्लीट साइंस. तो हम लोगों ने उसको
जिसे कहते हैं ना, पहले गुरुओं ने जिसको दूसरी तरीके से सीखा सिखाया, हमने भी वैसे ही सीखा, लेकिन उसको एक छोटा सा चैनलाइज किया हम लोगों ने, जिससे कि वो आजकल के समय में, क्योंकि आजकल के युवा बिना बात में कोई चीज ना सीखते हैं ना कुछ करते हैं, अनलेस उनको उससे कुछ फायदा हो, और पेरेंट्स भी तब भेजेंगे। नो व्हाई, क्यों, एंड आई थिंक वो क्यों कहीं अगर आप आंसर कर दे तो उनका जो बाइन होता है जी, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है, और आप बोल रहे हो वो ज्यादा बढ़ जाती है। और आप ये भी आई थिंक एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट यू आर मेकिंग कि डोंट लुक एट डांस एज अ फॉर्म, लुक एट डांस एज अ डिसिप्लिन विच इज गोइंग टू अफेक्ट यू लाइफ के हर एक मोड़ पे, हर एक स्तर पे। समय का भी एक डिसिप्लिन होता है। इसको नलिनी जी बहुत अच्छी तरह से पुटअप करेंगी, हार्मोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, जीवन में आपको बहुत से, जिसे कहते हैं ना, आपके अंदर एक एनर्जी चैनलाइज वाली बात, तो मैंने जो साहित्य का इंटरेस्ट आया मेरा, वो भी लिखने का इसी के माध्यम से आया। और एक छोटा सा लिखा हुआ है बैले के लिए, वो आपको बताती हूँ। साहित्यकार, मैं हिंदी उतनी पढ़ी नहीं जैसे सब्जेक्ट में, लेकिन मातृभाषा होने के कारण वो मेरे साथ रही। तो उसमें आप देखिए, जब लव कुश लक्ष्मण जी से युद्ध कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता ये मेरे चाचा हैं, और उनको नहीं पता मेरे भतीजे। माँ सीता दोनों जानती थी। मैं एक बैले बना रही थी, उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। तो कुश आके कहते हैं, माँ आज्ञा दो, मैं लव को छुटा के लाऊं। तो कहती हैं, कहाँ से? कहते हैं, वो उन्हें बंदी बना के ले गए हैं। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें सुनाऊंगी। कहती हैं, किसके विरुद्ध किसको आशीष, दोनों पक्ष जानती हैं। किसके विरुद्ध किसको आशीष, किसकी अकुशलता की चाह करूं, ये कैसी कठिन परीक्षा प्रभु, मैं गोद भरूं या मांग भरूं, मैं राहु बनूं या केतु बनूं, ममता रोंधूं या प्रीत दलूं, पद भ्रष्ट बनूं पद नष्ट करूं, मैं भस्म मिलूं या भस्म मलूं। तो मैं तो साहित्य उतना गहराई से पढ़ा नहीं, लेकिन नृत्य की जो एक अभिव्यक्ति है, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई, और माँ के संस्कार ने मुझे लिखना सिखाया। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दूंगी। कंचन देहसी कामिनी, एक बार कवियों के बीच में घुस गए, सब अपना इंट्रोडक्शन देख रहे थे, हमने कहा क्या देख। कंचन देहसी कामिनी, अरूप कटिलता निसंदेह, मृगनयनी गजगामिनी, नलिनी कमलिनी दुहे। और she is the, if I say she is the source of life, she is the soul behind all the creation. Just become a child to discover her touch. I am there because there is she is there because there is universe, and universe is there because there is she. What a lovely और जयशंकर प्रसाद जी की अभिव्यक्ति में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। बहुत सुंदर, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल नोट टू कंक्लूड द प्रोग्राम इन। आई थिंक हमने डिसिप्लिन की बात की, जैसे हम कह रहे थे समय का भी एक डिसिप्लिन होता है, फिर जब डिसिप्लिन की मोड में आता है किसी की नहीं सुनता। कला और काव्य तो अथाह सागर है, आप सकते चाहिए, अंत नहीं होगा। और वो भी आप जैसे प्यारे लोगों के बीच में, जो इतनी नारियों के बीच में आप इतना अच्छा अभिव्यक्ति कर रहे हैं चंद शब्दों में, और वो भी एक अच्छे समूह में जाके कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। In fact, Professor Annapurni, thank you so much for coming on to our program. Anamika, thank you so much. And of course, the beautiful dancing duo, Kamalini and Nalini ji. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप इस शो पे आए। I think हमारे लिसनर्स वो कहते हैं ना, खुशी से नाच उठेंगे। हमारा भी सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। तो हम एक टुकड़ा पढ़ देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। You were listening to a special program on the occasion of International Women's Day. The participants were Professor Annapurni Subramaniam, Director, Indian Institute of Astrophysics, Padma Shri awardee Kathak dancer duo Kamalini Asthana and Nalini Asthana, and Anamika Joshi, poet. Moderator was Gaura Dhawan Lal. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044. अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। इसमें भाग ले रही थी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, पद्मश्री नृत्यांगना कमलिनी अस्थाना व नलिनी अस्थाना
और कवित्री अनामिका जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी गौरा धवन लाल। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।